Hello and welcome in my video. In this video we will discuss about the second chapter of the history class 8th, the modern period. Okay, so let us start. 18th century. Which year we considered as the 18th century? Means from 1700 to 1799, the duration of these years considered as the 18th century. Okay, now let us start. The modern period of Indian history began after 1707, when the last great Mughal emperor Aurangzeb died. इंडिया में मॉडर्न पीरियड का टाइम तब से काउंट किया जाता है जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद का जो टाइम है मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है और उसके पहले का टाइम मेडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हिज डेथ मैनी न्यू पावर emerged in India and gave new political picture. European came to India and exploited Indians politically, socially, economically and culturally. Earlier East India Company was established only as a trading company, but European took advantages of the Indian political instability. Slowly he controlled over a large part of India, but in 1858 the control was transferred into the hands of the British Crown. Means after the death of Aurangzeb, in absence of central authority, in absence of strong power, number of regional kingdoms, regional powers developed. At the same time, outsiders came to India from European countries. Earlier they came to India and exploited Indians in different way, like economically, socially, culturally, politically, ठीक है, regionally. Earlier when they came to India, they were asking for trade here only. वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे. But slowly when they realized the political system, the entire system of Indian politics was very poor, then they started to take advantages. They adopted the policy of divide and rule. They played game between the rulers, and slowly they occupied the control, the power of India. But after the revolt of 1857, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, the control of India from East India Company came into the hand of British Crown. Means ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सब कुछ चला आता है. अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू इंडिया के लोगों के बारे में डिस्कशंस होना, निर्णय होना, इंडिया में क्या होना चाहिए, कैसे वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम होने चाहिए, कैसे वहाँ रिफॉर्म्स होने चाहिए, कैसे वहाँ एजुकेशन डेवलप होना चाहिए. अब इन सब चीज़ों पर निर्णय कौन लेने लगेगा? आफ्टर 58 ब्रिटिश क्राउन, मीन्स वहाँ की महारानी. उसके पहले कौन ले रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी. और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का किस लिए यहाँ आई थी? व्यापार करने. और व्यापार जो करता है वो सबसे उसका सब मेन उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन एम? टू अर्न मोर एंड मोर मनी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 19th century. What happened in 19th century? Now see the heading 19th century. Which time we considered as a 19th century? From 1800 to 1899. यहाँ देखो डिजिट्स में 1800 चल रहा है, लेकिन वो 19th सेंचुरी हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि हम 19 की तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, इन दिस सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी adopted many steps
to extend and consolidate their control over India, like military action, introduction of railways, postal services, passing different acts like वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में. ठीक है. 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर को इंडिया में सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की. जैसे मिलिट्री एक्शन को यहाँ इस्टेब्लिश किया, रेलवेज़ को यहाँ डेवलप किया. रेलवेज़, Britishers developed railway not for the benefit of Indians. They established railway here only to exploit Indian resources. ठीक है. मिलिट्री पावर को यहाँ इसलिए डेवलप किया कि हम इंडियंस के ऊपर कंट्रोल कर सकें. पोस्टल सर्विसेज इसलिए डेवलप किया कि बाय रोड मैसेजेस भेजने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल सर्विसेज डेवलप किए उन्होंने. बट द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the first revolt started by the Indians to stop colonial power. लेकिन इन सब एक्सप्लॉटेशन के खिलाफ 1757 के से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को टेक ओवर किया था, कंट्रोल किया था. और 100 साल बाद 1857 में पहली क्रांति, एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा सेटबैक लाने की कोशिश की गई इंडियंस के थ्रू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर वाज सो मैनी lacunas through which our Indian rulers, Indian sepoys, Indian soldiers had failed, and Britishers suppressed it ruthlessly. बहुत बुरी तरह से ब्रिटिशर्स ने उस क्रांति को दबा दिया, ख़त्म कर दिया. द ब्रिटिश कंटिन्यूड रूल्ड ओवर इंडिया, और उसके बाद से फिर ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने लगे. लेकिन बहुत सारे चेंजेस आए उस रिवोल्ट के थ्रू, हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 इस्टेब्लिश्ड एंड यूनाइटेड इंडियंस फॉर फ्रीडम. और इसी समय में 19th सेंचुरी में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाता है, जो इंडियन पीपल को यूनाइट करते हैं. किस चीज़ के लिए? फॉर फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है. तो इन सब चीज़ों की मदद से हम मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और करते हैं आगे के चैप्टर्स में. इट इज़ ओनली, दिस चैप्टर इज़ ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न पीरियड के बारे में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है. ठीक है. तो डिटेल में हम लोग जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा. 20th सेंचुरी. ठीक है. अब 20th सेंचुरी में क्या क्या होता है, क्योंकि इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में. क्लियर. तो वो टाइम पीरियड कौन सी सेंचुरी कंसिडर किया जाएगा? 20th सेंचुरी. इन दिस सेंचुरी major events took place like formation of Muslim League, Home Rule League, जलियांवाला बाग मैसेकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा. ठीक है. Along with this, Britishers introduced many reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle. But under the leadership of Mahatma Gandhi and many other leaders, India gained independence in 1947. Unfortunately, India was divided into two countries, India and Pakistan. 20th सेंचुरी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, होम रूल लीग बना, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ. इन टॉपिक्स पे हम लोग आगे जब चैप्टर में आएंगे ये टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. इसके साथ साथ 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ऐसे बहुत सारे सुधार किए, करने का प्रयास किया जिससे वो इंडियंस को अपने फेवर में कर सकें. लेकिन वो फेल हुए और महात्मा गांधी और बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण लीडर्स, इम्पोर्टेंट लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों के टोटल कंट्रीब्यूशन से इंडिया फाइनली 1947 में आज़ाद होता है. इसमें ये कहना कि किसने ज़्यादा रोल
प्ले किया, किसने कम किया, किसका रास्ता क्या था क्या नहीं था, वो नहीं सोचना है। कुल मिलाकर के ये सोचना है कि इन सभी ने इंडिया को आज़ाद करने के लिए अपने अपने रास्ते से, अपने अपने ढंग से अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया। बट इंडिया, अनफॉर्चुनेटली ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंडिया आज़ाद होते होते भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसे हम इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं। नाउ this one is the main topic of your chapter, sources of information of the modern Indian history। हम किन किन टॉपिक्स के थ्रू, किन किन माध्यम से अपने मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मिलती है, through which we get information about the modern period of India। So these are the few topics, few points through which we get information। First one is British documents, many books, letters, writings, speeches, etc., newspapers, administrative reports of the government, internet or databases, old buildings and artifacts and people. So one by one we will discuss in detail. First one is British documents। What is British documents? British documents are the documents which is released by the Britishers for the reforms, for the welfare, for the administrative development of India। So Morley Minto reforms in 1909, Government of India Act 1935, reports of Simon Commission 1929। ये हैं क्या, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में रीड करेंगे जब चैप्टर में ये टॉपिक आएंगे। बस अभी हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि इनके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिल्बर्ट बिल्स, आर्म बिल है यहाँ पर बेटा, ठीक है, मिसप्रिंट होने की वजह से आर्म्स टाइम हो गया है, बट आप इसको रीड करेंगे आर्म्स बिल। थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स वी गेट इंफॉर्मेशन about the condition of that people at that time and administration of that time। next one is books। उस समय तो बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, बट हम उसमें से दो चार का नाम ले लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, MK गांधी, महात्मा गांधी। आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने। इन बुक्स के माध्यम से भी उस समय के पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेटर्स, राइटिंग्स एंड स्पीचेस। महात्मा गांधी ने गवर्नर जनरल्स को या ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो लेटर्स लिखे थे उसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी वो आज भी रखा हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी ने बहुत सारे स्पीचेस दिए थे, लोगों को एड्रेस किया था, तो उस समय क्या कहा था वो उसके रिकॉर्डिंग आज भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं, महात्मा गांधी के म्यूज़ियम में अवेलेबल हैं। The collection of Gandhiji's writing, his letters and speeches are the great source of information about the modern period, which is stored in Gandhi Smriti near Rajghat, ठीक है। It is the biggest museum of Gandhiji। गांधी जी के जो राजघाट में गांधी स्मृति है उसमें उनके लेटर्स, राइटिंग, स्पीच के जो ऑडियो रिकॉर्ड हैं, फ़ोटोज़, उनकी मदद से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी के बारे में पता चलता है। आपके इलाहाबाद में आनंद भवन है, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो थ्रू ऑल दीज थिंग्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड। न्यूज़पेपर्स, उस समय के जो न्यूज़पेपर्स थे वो आज भी हमारे लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल हैं। उनके थ्रू, जिसके थ्रू हमको ये जानकारी मिलती है कि उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या क्या थे, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम मैं यहाँ लिखा हूँ। द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर था जिसको निकालने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, ये मराठी लैंग्वेज में था। अमृत बाजार पत्रिका बाल गंगाधर तिलक का भी ये था, ठीक है। तो इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। Now see the pictures of papers, the Times of India, Kesari,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स थे, decisions taken by the British government on tribes, caste and land revenue settlements are very important sources of information. For example, report on the survey and settlement operation in the district of Champaran 1913 to 1919. उस समय बिहार में जो चंपारण मूवमेंट हुआ था उसके बारे में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या डिसीजन लिए थे, उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, कैसा लैंड रेवेन्यू था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडियंस को। ठीक है, नाउ सी दिस पिक्चर इन द सेंटर महात्मा गांधी इज हियर। ये चंपारण मूवमेंट का एक पिक्चर है जो टैक्स बढ़ाने के संबंध में रिलेटेड मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस से हम लोग को उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। ओल्ड बिल्डिंग्स, हम पुरानी बिल्डिंग्स को देख कर के भी समझ सकते हैं कि उस समय कैसा सिचुएशन रहा होगा, कैसा आर्किटेक्चर रहा होगा। ओके, सो विक्टोरिया मेमोरियल मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया टर्मिनस होना चाहिए था यहाँ पे बेटा। ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस न्यू दिल्ली। नाउ सी दिस वन, प्रेसिडेंट हाउस, विक्टोरिया टर्मिनस, ये विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, ये उस समय के बनाए हुए पिक्चर ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिसकी मदद से हमको मॉडर्न पीरियड या उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। People of that period tell us the tales of the past. Many people who participated in the freedom struggle and saw the important changes share the experiences which throw light on the life of the people and the condition of that time. उस समय के जो लोग थे उनकी मदद से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में रूल कर रहे थे तो वो उस समय छोटे से थे, तो वो हम लोग को उस समय के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ बताते थे कि जब ब्रिटिशर्स आते थे तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, कैसे वो लोग लैंड रेवेन्यू को इतना बढ़ा कर लेते थे, कैसे वो एक्सप्लॉइट करते थे, कैसे वो पीटते थे लोगों को। तो उस समय के सिचुएशंस, उस समय की कंडीशंस के बारे में वो लोग बताते हैं जो आज भी ज़िंदा हैं, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में या उस समय थे। ठीक है ना, सो दीज आर द फ्यू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड। ओके, नाउ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट was passed in 1878। ये एक ऐसा एक्ट था, वर्नाकुलर मीन्स होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और प्रेस एक्ट मीन्स एक ऐसा डिसीजन लिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू कि जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। न्यूज़पेपर वही अपने न्यूज़ दे सकते हैं जो इंग्लिश में दे रहे हों। हिंदी में या लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़ छापने से क्या हो रहा था, न्यूज़ प्रिंट करने से क्या हो रहा था कि बातों को इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को, वो पब्लिक तक ईजिली पहुंच रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस करके लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने वाले न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया और कहा कि अगर आप निकालना भी चाहते हैं, आप अपना न्यूज़पेपर प्रिंट करना भी चाहते हैं, पब्लिश करना भी चाहते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि इंडिया में इंग्लिश पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, द ब्रिटिश पास्ड द एक्ट टू रिप्रेस द एंटी गवर्नमेंट राइटिंग एंड प्रोपेगेंडा। ओके, so in this video we have covered all topics of the first chapter of history. So don't forget to subscribe my channel, and if there is any suggestion, so you are very welcome. Give your suggestion in comment box and subscribe my channel to update new videos. जैसे ही मैं नया वीडियोस कोई बनाऊंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ring bell. Okay, thank you all.